50 daily use English words with examples. First is peep. Peep means होता है झांकना. For example, could I just peep inside? क्या मैं अंदर झांक सकता हूँ? Could I just peep inside? क्या मैं अंदर झांक सकता हूँ? Next word is chase. Chase means होता है पीछा करना. For example, someone was chasing me. कोई मेरा पीछा कर रहा था. Someone was chasing me. कोई मेरा पीछा कर रहा था. Next word is stamina. Stamina means होता है सहनशीलता या फिर सहन शक्ति. For example, she didn't have the stamina to complete the course. उसके पास कोर्स पूरा करने की सहन शक्ति नहीं थी. She didn't have the stamina to complete the course. Next word is extensive. Extensive means होता है बहुत बड़ा, विशाल या फिर व्यापक. For example, his extensive knowledge surprised me. उनका व्यापक ज्ञान मुझे चौंका देता है. His extensive knowledge surprised me. Next word is event. Event means होता है कार्यक्रम. For example, they are going to a charity event. वे एक चैरिटी कार्यक्रम में जा रहे हैं. They are going to a charity event. वे एक चैरिटी कार्यक्रम में जा रहे हैं. Next word is dominate. Dominate means होता है हावी होना या किसी पर राज करना. For example, he dominated her life for many years. उसने कई सालों तक उसके जीवन पर राज किया या वह कई सालों तक उस पर हावी रहा. He dominated her life for many years. Next word is twist. Twist means होता है मोड़ना. For example, he twisted my hand. उसने मेरा हाथ मोड़ दिया. He twisted my hand. उसने मेरा हाथ मोड़ दिया. Next word is features. Features means होता है विशेषताएं. For example, this application needs more features. इस एप्लीकेशन को और अधिक विशेषताओं की आवश्यकता है. This application needs more features. Next word is essential. Essential means होता है बहुत आवश्यक या जरूरी. For example, good eating habits are essential. खाने की अच्छी आदतें जरूरी हैं. Good eating habits are essential. खाने की अच्छी आदतें जरूरी हैं. Next word is oral. Oral means होता है मौखिक. For example, we had an oral exam. हमारी एक मौखिक परीक्षा थी. We had an oral exam. हमारी एक मौखिक परीक्षा थी. Next word we have savings. Savings means होता है बचत. For example, it took all our savings to buy the house. घर खरीदने में हमारी सारी बचत लग गई या सारी सेविंग्स लग गई. It took all our savings to buy the house. Next word is quick. Quick means होता है झटपट या फिर जल्दी. For example, let's get something quick to drink. चलो जल्दी से कुछ पीते हैं या झटपट कुछ पीते हैं. Let's get something quick to drink. Next word we have aggressive. Aggressive means होता है क्रोधी. For example, he is an aggressive person. वह एक क्रोधी व्यक्ति है. He is an aggressive person. Next word we have unfair. Unfair means होता है अनुचित. For example, his decision was very unfair to the whole class. उनका निर्णय पूरी कक्षा के साथ बहुत अनुचित था या पूरी कक्षा के लिए बहुत अनुचित था. His decision was very unfair to the whole class. Next word is obsession. Obsession means होता है जुनून या फिर सनक. For example, it was like a obsession. यह एक जुनून की तरह था या फिर यह एक सनक की तरह था. It was like a obsession. Next word we have overnight. Overnight means होता है रातों रात. For example, he became rich overnight. वह रातों रात मालदार हो गया. He became rich overnight. वह रातों रात मालदार हो गया. Next word we have worthless. Worthless means होता है बेकार. For example, without wisdom, wealth is worthless.
ज्ञान के बिना धन व्यर्थ है। विदाउट विजडम wealth is worthless. Next word we have citizen. Citizen means होता है नागरिक। For example, he is a citizen of India. वह भारत का नागरिक है। He is a citizen of India. वह भारत का नागरिक है। Next word है capable. Capable means होता है योग्य। For example, I think you are capable of anything. मुझे लगता है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं या योग्य हैं। आई थिंक यू आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है सटनली। सटनली मीन्स होता है निश्चित रूप से या फिर जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सटनली टॉक टू हिम। मैं उससे जरूर बात करूंगा। आई विल सटनली टॉक टू हिम। मैं उससे जरूर बात करूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा या फिर चौड़ी। फॉर एग्जाम्पल, दिस रोड इज वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड। यह सड़क बहुत लंबी और चौड़ी है। दिस रोड इज वेरी लॉन्ग एंड ब्रॉड। यह सड़क बहुत लंबी और चौड़ी है। नेक्स्ट वर्ड इज लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है काम धंधा या फिर पेशा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। आपका क्या पेशा है या आपका क्या काम धंधा है। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मिशन। मिशन मीन्स होता है लक्ष्य या फिर टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए मिशन टू कंप्लीट। मुझे एक मिशन पूरा करना है। आई हैव ए मिशन टू कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स होता है छोटा या फिर छोटी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए ब्रीफ स्टेटमेंट। मेरे पास एक संक्षिप्त विवरण है या फिर छोटा स्टेटमेंट है। आई हैव ए ब्रीफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। फॉर एग्जाम्पल, द ब्राइड इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। द ब्राइड इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूम। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रूम इज गेटिंग रेडी। दूल्हा तैयार हो रहा है। द ग्रूम इज गेटिंग रेडी। दूल्हा तैयार हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव समडे। समडे मीन्स होता है किसी दिन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टू सी यू समडे। मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू सी यू समडे। मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सिंक। सिंक मीन्स होता है डूबना। फॉर एग्जाम्पल, द शिप इज सिंकिंग इन द वाटर। जहाज पानी में डूब रहा है। द शिप इज सिंकिंग इन द वाटर। जहाज पानी में डूब रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव शेड। शेड मीन्स होता है छाँव। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। चलो चलते हैं और छाया में बैठते हैं। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव पेल। पेल मीन्स होता है पीला या कमजोर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज पेल विथ फियर। वह डर से पीली थी। शी वॉज पेल विथ फियर। वह डर से पीली थी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑनर यू सर। मैं आपका सम्मान करता हूँ महोदय या सर। आई ऑनर यू सर। मैं आपका सम्मान करता हूँ सर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम या फिर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंस। प्रत्येक क्रिया का अपना परिणाम होता है। एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंस। प्रत्येक क्रिया का अपना एक परिणाम होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स होता है अनुमान लगाना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू एस्टिमेट इट्स वैल्यू। क्या आप इसके मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। कैन यू एस्टिमेट इट्स वैल्यू। क्या आप इसके मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनटिल। अनटिल मीन्स होता है जब तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्टे हियर अनटिल यू कम बैक। मैं यहाँ तब तक रह सकता हूँ जब तक आप वापस नहीं आ जाते। आई कैन स्टे हियर अनटिल यू कम बैक।
नेक्स्ट वर्ड इज चीफ। चीफ मीन्स होता है प्रमुख या फिर मुख्य या मुखिया। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द चीफ ऑफ आवर टीम। वह हमारी टीम का प्रमुख है। ही इज द चीफ ऑफ आवर टीम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेज। मेज मीन्स होता है भूल भुलैया। फॉर एग्जाम्पल, वी गोट लॉस्ट इन द मेज। हम भूल भुलैया में खो गए। वी गोट लॉस्ट इन द मेज। हम भूल भुलैया में खो गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वेपन। वेपन मीन्स होता है हथियार। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वॉज द मर्डर वेपन। हत्या का हथियार क्या था या मर्डर का हथियार क्या था। व्हाट वॉज द मर्डर वेपन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। नेक्स्ट वर्ड इज अनहेल्दी। अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ। फॉर एग्जाम्पल, दे लुक्ड पुअर एंड अनहेल्दी। वे गरीब और अस्वस्थ लग रहे थे। दे लुक्ड पुअर एंड अनहेल्दी। वे गरीब और अस्वस्थ लग रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है ओवरऑल। ओवरऑल मीन्स होता है संपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, इट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस। यह संपूर्ण अनुभव है। इट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू हाइड हिज एंग्जाइटी। उसने अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड हिज एंग्जाइटी। उसने अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड इज स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहरना या रहना। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टे हियर एंड आई बी बैक सून। तुम यहाँ रहो या तुम यहाँ ठहरो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। यू स्टे हियर एंड आई बी बैक सून। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओवे। ओवे मीन्स होता है आज्ञा मानना या किसी की बात मानना। फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट ओवे हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता या आज्ञा नहीं मानता। ही डजंट ओबे हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज रिमूव। रिमूव मीन्स होता है हटाना। फॉर एग्जाम्पल, रिमूव दैट जैकेट। उस जैकेट को हटा दें। रिमूव दैट जैकेट। उस जैकेट को हटा दें। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दो। दो मीन्स होता है हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल दो आई रियली वॉन्टेड टू स्टे होम। मैं स्कूल गया था, हालांकि मैं वास्तव में घर पर रहना चाहता था। आई वेंट टू स्कूल दो आई रियली वॉन्टेड टू स्टे होम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। फॉर एग्जाम्पल, कीप अप द स्ट्रगल टिल यू सक्सीड। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक संघर्ष जारी रखें। कीप अप द स्ट्रगल टिल यू सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव compete। compete मीन्स होता है प्रतियोगिता में भाग लेना या फिर मुकाबला करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट compete with her। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आई कांट compete with her। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।